my dear kids, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our mathematics book by Coral Publisher, and the name of our book is Basic Mathematics Class 2 और आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। First, there is a teacher page. The teacher will distribute square pieces of paper to all the students. Now he or she will conduct an activity. The teacher will ask them to fold the given paper into two equal parts. एक square paper है, उसको fold करना है एक same equal parts में. Then the teacher will ask them if both the portions are same or different. पॉसिबल आंसर विल बी सेम। जब आप स्क्वायर पेपर को बिल्कुल बीच में से फोल्ड करेंगे तो दोनों पोर्शंस क्या आएंगे, बराबर आएंगे। सो द शीट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट कॉल्ड हाफ। बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई, जिसे हम हाफ कहेंगे, वो रिप्रेजेंट होगा 1/2 के फॉर्म में। नाउ द टीचर विल मेक वन मोर फोल्ड एंड आस्क द स्टूडेंट टू डू द सेम। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर को एक और फोल्ड करेंगे। ये जो हाफ है इसको फोल्ड किया तो क्या मिला, हमें एक छोटा स्क्वायर मिला। इन द एंड ही और शी विल ओपन द शीट एंड आस्क द चिल्ड्रन टू ओपन देयर शीट टू। जब बच्चे भी अपनी शीट खोलेंगे तो वो कैसे आएगी, इस तरीके से। एक स्क्वायर शीट को कितने उसमें डिवाइड किया गया, 4 इक्वल पार्ट्स में। ईच पोर्शन इज 1/4। We can also write it as 1/4, 1/4. The teacher will distribute the square sheet again and perform the next activity. The teacher will ask the student to fold it into 3 equal parts as follow. अब 3 equal part में उस sheet को हम fold करेंगे। Each portion will 1/3. We can also write it as 1/3, 1/3. एक उसका 1/3. The teacher will again ask them to fold into 2 equal parts and shown and then open the sheet as follow. Each portion will be 1/6. We can also write it as 1/6, 1/6. देखिए 6 भागों में बांटा गया। The way the teacher will help the student to develop the understanding of fraction. एक चीज के बराबर के भाग करने को हम फ्रैक्शंस कहते हैं। द टीचर कैन ऑल्सो कंडक्ट द एक्टिविटी विद अ पिज्जा और अ चपाती केक एज फॉलो। 1 whole, 1 half, 1/4। एक पूरा 1 whole होता है। एक चीज के जब 2 भाग कर दिए जाते हैं 1 half होता है। एक चीज के जब हम 4 इक्वल भाग करेंगे तो वो 1/4 होता है। Fraction origin. Draw a circle and divide it into 2 equal parts. Shade one part. The shaded part is 1 part out of 2 equal parts. The shaded part is called 1/2. जो shaded part है ये क्या कहलाता है, 1/2. 1/2 is written as 1/2 as it is read as 1/2. The unshaded part is also 1 part of 2 equal parts. So the unshaded part is also 1/2. Unshaded part भी क्या है, 1/2. Now divide the circle into 3 equal parts. Shade one part. The shaded part is 1 part of 3 equal parts. The shaded part is called 1/3. Shaded part क्या कहलाएगा, 1/3. 1/3 is written as 1/3 as it is read as 1/3. The unshaded part is 2 parts out of 3 equal parts. We say that the unshaded part is 2/3. Unshaded part कितना है, 2/3. 3 मतलब ये तीनों, और कितने अनशेड है जिसमें कलर नहीं है, 2, तो वो आया 2/3 of the whole. We call 2/3 as 2/3 of the whole. एक whole का 2/3. Now divide the circle into 4 equal parts. अब एक सर्कल को 4 equal parts में डिवाइड करना है। Shade one part of 4 equal parts. 1/4 is called 1/4. Unshaded part
3 parts. Unshaded कितने हैं? 3 parts out of 4 equal parts. So unshaded part is 3/4 of whole. 3/4 is called 3/4. Keep in your mind 2 halves make a whole. 2 halves make a whole. 3/3 make a whole. 3/3 make a whole. 4/4 make a whole. किसी एक चीज के 4 टुकड़ों को जब मिलाया जाता है तो वो एक पूरा होल बनता है. Now time to do exercise. Exercise 1. Question number 1. Color 1/2 of each shape. शेप दी हुई है, इसका 1/2 हमें कलर करना है. मतलब 2 तो ये दोनों हो गए, हमें कितना कलर करना है? 1 पार्ट. तो आप किसी भी एक पार्ट को कलर करेंगे सभी पिक्चर्स में. इस तरीके से आप इसको कलर करेंगे. नेक्स्ट, कलर 1/3 ऑफ ईच शेप. 1/3 पार्ट हमें क्या करना है? कलर करना है. 3 पार्ट है, उसका 1 पार्ट हम कलर करेंगे. कोई सा भी एक पार्ट आप कलर करेंगे. माय डियर किड्स, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, कलर 1/4 ऑफ ईच शेप. क्वेश्चन नंबर 4, कलर और शेड द फिगर टू शो द गिवन फ्रैक्शन. आपको क्या करना है? कलर करना है या शेड करना है फिगर को शो करने के लिए जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/4. 4 मतलब 1 2 3 4. 4 इसके भाग है. कलर कितने में करना है आपको? 1 में. तो आप कोई से भी 1 को कलर या फिर शेड करेंगे. बी में 1/2 मतलब कोई से भी एक पार्ट में कलर करेंगे. 2/4 कोई से भी 2 पार्ट्स में आप कलर करेंगे. माय डियर किड्स, सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे बाय योरसेल्फ. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट यू हैव टू डू, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट. आपको यहाँ पर शेड किया हुआ है, आपको क्या लिखना है? फ्रैक्शन लिखना है शेडेड पार्ट का. तो सबसे पहले हम लाइन करेंगे. टोटल देखेंगे कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स. तो 4 नीचे आएगा. कितने पार्ट्स में कलर है? 2 पार्ट्स में. तो आएगा 2/4. नेक्स्ट, कितने पार्ट्स हैं? 2. कितने में कलर है? 1 में. तो आया आंसर 1/2. तो इसी तरीके से बाकी की एक्सरसाइज आप खुद कंप्लीट करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट एंड अनशेडेड पार्ट्स. 1 इज डन फॉर यू. एक फ्रैक्शन है, उसमें शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट का आपको फ्रैक्शन लिखना है. पहला किया हुआ है, समझाती हूं आपको. फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट्स. पहले हम देखेंगे टोटल कितने पार्ट्स हैं. टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो 8 नीचे आया. शेड कितने में है? 1 2 3, तो 3 ऊपर आया. अब कितने अनशेडेड पार्ट हैं? टोटल है 8 और अनशेडेड है 5, तो हम लिखेंगे 5/8. नेक्स्ट करते हैं फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट. टोटल कितने पार्ट्स हैं? 10. कितने में शेड है? 2 में. तो हम यहाँ लिखेंगे 2/10. और कितने में शेड नहीं है? 8 में. तो हम यहाँ लिखेंगे 8/2. सेम नेक्स्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट. टोटल पार्ट्स 3 3 6 एंड 2 8. तो हम नीचे लिखेंगे 8. और कितने में शेड है? 1 2 3 4 5. 5/8. और अनशेडेड कितने हैं? 1 2 3. 3/8. My dear kids, rest of the exercise you have to do by yourself. My dear kids, in this chapter we have learnt about fraction. I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.